Let us look at the taxation of income from units or capital gains of such units in case of an offshore fund. And the relevant section which is applicable is section 115AB. Now, if suppose there is a overseas financial institution, okay, and they receive income which could be of two types. One is, suppose they have subscribed to some units of mutual fund or unit trust of India, okay, and the subscription has been done in foreign currency. So when you subscribe to these units of mutual fund, they will give you some regular income, and when you transfer them, there will be gains which could be in the nature of capital gains. When we talk about the taxation of from a regular perspective, any income received by an overseas financial institution in respect of units of mutual funds or UTI which were purchased in foreign currency will be taxable at 10%. अगर कोई ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका मतलब क्या है वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इफ दे रिसीव एनी इनकम from what? From certain units that they would have purchased in mutual fund or unit trust of India. और condition क्या है? Condition is that जो ये units जिनकी हम बात कर रहे हैं, these should have been purchased in foreign currency. Such an income which is more in the nature of being a consistent regular income will be taxable at 10%. Second, long-term capital gains. To OFI, Overseas Financial Institution, from transfer of units of mutual funds or UTI which were purchased in foreign currency. अब important ये है कि ये purchase foreign currency में किए हों, sale foreign currency में है या नहीं उसकी कोई condition नहीं है. अगर ये यूनिट आप बेचते हैं, इस पे जो आपका long term capital gain है. Now again the other word which is important is long term. अगर short term है उस पे टैक्स रेट 10% नहीं होगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पे आपका टैक्स रेट 10% का लगेगा. व्हाट इज एन ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? इट मींस एनी फंड, कोई बाहर का फंड है या इंस्टीट्यूशन है और एसोसिएशन और बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. इस टैक्स बेनिफिट के लिए जरूरी नहीं है कि दैट यू शुड बी एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी. Even if you are not incorporated, that will not make a difference to the eligibility of tax benefit. Established under the laws of a country outside India. Overseas word का significance ही है ये. अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड होते तो ओवरसीज नहीं होते. इसलिए ये ज़रूरी है कि ये it should be established under the laws of a country outside India, which has entered into an arrangement for investment in India with any public sector bank or public financial institution or mutual fund specified under section 10 subsection 23D. इस ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक अग्रीमेंट होना चाहिए या तो पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या किसी म्यूचुअल फंड के साथ जो कि 1023D में रेफर्ड है. अगर ये कंडीशन होती है तब आप OFI क्वालिफाई करेंगे. अगर आप OFI क्वालिफाई करते हैं तो जो आपकी इनकम है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से या यूटीआई में जो इन्वेस्टमेंट है उससे, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो इनके यूनिट्स ट्रांसफर करने पे आपको अक्रू होती है, वो 10% के कंसेशनल रेट पर टैक्सेबल होगी, प्रोवाइडेड जो आपने परचेज किया है वो फॉरेन करेंसी में हो. अब मान लीजिए मेरी $100 की इनकम थी, इस पे टैक्स $10 का आ गया. लेकिन टैक्स कैलकुलेट करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं कि क्या इस इनकम के अगेंस्ट कोई एक्सपेंसेस वगैरह अलाउ होंगे? क्या मैं चैप्टर 6A की डिडक्शंस क्लेम कर सकता हूँ? अगर मान लो एक साल में मेरे को कोई लॉस हो गया, क्या मैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ ताकि अगले साल इस इनकम से सेट ऑफ कर सकूँ? इन सब क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखते हैं. द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 एंड सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 for currency fluctuation and indexation is not available for computation of such long-term capital gains. जब आप 10% पे कैपिटल गेन का कंसेशनल रेट क्लेम करते हैं, उस केस में
जो आपका कॉस्ट है वो एज इट इज कंसिडर किया जाएगा. देयर विल बी नो इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि मैं आपको ऑलरेडी कंसेशनल रेट पे टैक्स कर रहा हूँ. सेकेंड, करेंसी फ्लक्चुएशन के लिए आपका जो प्रोवाइजो है सेक्शन 48 का एक स्पेसिफिक मेथड बताता है जिसमें कि आपको कॉस्ट को, ट्रांसफ़र को, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र को एक फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं. एंड देयर इज अ स्पेसिफाइड मेथड फॉर दैट विच वी हैव डिस्कस्ड, राइट. वो भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होता. नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 28 to 44C. इसमें डेप्रिसिएशन भी कवर हो गया सेक्शन 32 का, और सेक्शन 57(1) और 57(3) और अंडर चैप्टर 6A इन कंप्यूटिंग द अबव इनकम, इनमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी. अदर इनकम ऑफ OFI shall be taxable as per the normal provisions of the Income Tax Act 1961. One is missing here, and entitled to deduction under chapter 6A. अगर इस इनकम के अलावा जो ये यूनिट्स की हमने बात करी है, कैपिटल गेन की और इनकम की, OFI की कोई और भी इनकम है, उसके ऊपर जो टैक्स है वो नॉर्मल प्रोविजन में लगेगा. वहाँ पे 10% का रेट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा और आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन उसमें मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस अदर इनकम. सिर्फ इसलिए कि आपकी अदर इनकम है, आप इस इनकम के ऊपर चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते. चैप्टर 6 प्रोविजन रिलेटिंग टू सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस आर एप्लीकेबल. एक साल में लॉस हुआ, अगले साल गेन है, आप सेट ऑफ कर सकते हैं. द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038 सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस. अब अगर आप किसी इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड ये भी होते हैं, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड है तो उसकी ट्रांसफर पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है. वो इन एनी केस एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1038. बट इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जो फाइनेंस एक्ट 2018 के हिसाब से एप्लीकेबल हो सकती हैं. अभी ये फिलहाल एक्ट नहीं है, ये केवल बिल है. अगर अप्रूव होता है तो ये फाइनेंस एक्ट हो जाएगा. वो जितने भी चेंजेस हैं, वंस दे आर इनकॉर्पोरेटेड वी विल गो थ्रू देम थ्रू अ सेपरेट चैप्टर. देयरफॉर सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर नॉट टैक्सेबल एट द रेट गिवन अंडर सेक्शन 115AB. अगर ये यहाँ एग्जेम्प्ट होते तो ये एप्लीकेबल नहीं था, बट इसमें कुछ चेंजेस सजेस्टेड है जिससे इस प्रोविजन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है. वी आर गोइंग टू लुक एट दीज प्रोविजंस वंस द बिल इज पास्ड. Short-term capital gains on units of equity-oriented funds are taxable at 15% under 111A, provided security transaction tax has been paid on sale of such units. So, again, this will be taxable at this particular rate.